मंजिलें उन्हें मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से उड़ान नहीं होता, हौसलों से उड़ान होता है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। Good note to all. We are from Quality Circle team. उड़ान सपनों से सिद्धि तक। Our team consists of रिंकल पटेल लीडर, our team consists of रिंकल पटेल लीडर, दीप्तेश पटेल डेप्यूटी लीडर, दीक्षित प्रजापति मेंबर, जिग्नेश पटेल मेंबर, Hitesh Savalia, member. We are thankful to our coordinator, Ms. Monica Kaushal, and our facilitator, Mr. Vishal Mehta. Our teams forms on जून 2019, meetings date, twice a week, number of meeting, 22, percentage of attendance. 95%. We have used PDCA cycle for solving the problem. But by look, what is PDCA? प्लान, do, check, Act. There are 12 steps in PDCA cycle. Step number 1, आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम, step number 2, selection of problem, step number 3, define the problem, step number 4, Analyze the problem. step number 5, आइडेंटिफिकेशन ऑफ कॉजेज, step number 6, finding out root cause, step number 7, data analysis, step number 8, Developing solution. step number 9, फोर्सिंग प्रोबेबल रेजिस्टेंस, step number 10, trial step implementation, number 11, regular implementation, step number 12, Follow up and review. step number 1, आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम, status completed, tool use, brainstorming. We have performed the brainstorming by using the round robin method, and by this we have identified 66 number of problems, out of which we have solved 3 problems in the previous quality circles, and currently we are working on 4th problem. step number 2, selection of problem, status completed, tool use, rating method. Based on these 66 types of problem, we have mainly categorized this problem in category A, B and C. Category A, which can be solved by Ourselves. Category B, which can be solved by CFM. Category C, which can be solved by Help of management. Into that, category A, which consists of 29 problems. Category B, which consists of 25 problems. Category C, which consists of 12 problems. Into that, we are mainly focusing category A types of problem, and from that top 5 problem we have categorized on basis of cost, quality, time and production. Into that top 5 most problem we have only focused 25th number of problem which titled with the lower in RFT in block A1. step 3, define the problem, status completed, tool use, flow diagram, Based on the flow diagram, there are 4 steps in the manufacturing process: dispensing, manufacturing, packing, and release. So, while performing the production activity, due to there is any mistake, there will be added investigation, delay in release, and also lower in quality index. So, we have reviewed our last 1 year data for the RFT data. So, what is RFT? RFT means it is an approach for performing the activity to complete the activity free from defect on a first attempt. So, we have reviewed our RFT data, and in which we found 53% of average. So, which means out of 100 batches, 47 batches found with the deviation and 53 batches found without any deviation. So, there is a scope of improvement. step 4, Analyze the problem. status Completed. tool use, 4W1H. एनालाइज द प्रॉब्लम के लिए हमने क्या किया, हमने लास्ट 1 ईयर का डेटा रिव्यू किया जिसमें हमने देखा कि 201 बैच हमारा मैन्युफैक्चरिंग हुआ, उसके सामने हमारा 179 डिविएशन हुआ। 179 से जो डिविएशन हुआ उसको हमने अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया। बेस्ड ऑन पाई चार्ट हमको ये पता चला कि 80% जो हमारे आरएफटी जा रही है वो ड्यू टू इक्विपमेंट रिलेटेड डिविएशन, प्रोसेस रिलेटेड डिविएशन एंड एनवीबीसी रिलेटेड डिविएशन।
What is the problem? Problem is lower in RFT due to process, equipment and NMPC related deviations. Where is the problem? On filling line in block A1, When it is observed? it is observed by comparing the data with the monthly RFT. Who is observed? Production and QA. How it is observed? It is observed with comparing and calculating the data with respect to other blocks. Step number 5. आइडेंटिफिकेशन ऑफ कॉजेज। अरे भाइयों, अपना ब्लॉक A1 में जो आरएफटी कम आ रहा है उसके क्या क्या कारण हो सकते हैं? Wrinkle by SOP is not followed properly. That is the one big reason for lower the RFT. Wrinkle by equipment malfunction is also one of the reason for the lower RFT. Oh. Human error. Human error is the basic reason while not performing the person with respect to SOP. That is the basic reason for the lower RFT. Lack of SOP training और lack of process training भी एक कारण हो सकता है। एसेप्टिक प्रैक्टिस फॉलो नहीं किया, एक भी कारण हो सकता है। हाँ, अरे भाइयों, हमने ये सब कारण तो ढूंढ लिए, लेकिन उसकी एक्चुअली वजह भी हमें ढूंढनी पड़ेगी। Step number 6. Finding out root cause. Status Completed. Tool used. YY analysis. अरे हाँ दिप्तेश भाई, आपने बोला था प्रोसीजर फॉलो नहीं करने की वजह से भी आरएफटी मेरा कम आता है, तो वो क्या हो सकता है, क्यों हो सकता है ऐसा? निकल भाई, एसओपी के अंदर जो प्रोसीजर दिया है वो लैक ऑफ क्लैरिटी, पर्सन को पता ही नहीं है कि ये प्रोसीजर कैसे करना है, तो उसकी वजह से भी हमारे डेविएशन है अल्टीमेटली बढ़ते हैं और उसकी वजह से हमारा आरएफटी लो होता जा रहा है। और अपना इक्विपमेंट की वजह से भी कुछ होता है क्या? रिंकल में इक्विपमेंट की वजह से बिल्कुल हो सकता है। कभी कभी चलते प्रोसेस में अगर इक्विपमेंट ब्रेकडाउन में चला जाए तो अपना प्रोसेस एक्सटेंड हो जाता है, उसकी वजह से प्रोडक्ट का होल्ड टाइम भी क्रॉस हो जाता है, जो लोअर आरएफटी का रीजन हो सकता है। और ऐसा भी हो सकता है कभी कभी इनिशियली अगर मशीन ऑपरेटर ने प्रॉपर सेट नहीं किया तो रिजेक्शन भी पड़ जाता है। दैट इज आल्सो वन ऑफ द रीजन फॉर लोअर आरएफटी। हाँ बराबर है। और पर्सन की वजह से भी प्रॉब्लम है क्या? हाँ, ह्यूमन एरर। पर्सन के क्यों ना भूले हम, पर्सन इज द अल्टीमेटली प्रॉब्लम अगर पर्सन को पता नहीं है, अगर एसओपी का प्रोसीजर फॉलो नहीं कर रहा है, पर्सन अपना लैक ऑफ क्लैरिटी कर रहा है, अपना पर्सन जो है एसओपी का पूरा उसको ज्ञान नहीं रहता है, तो उसकी वजह से वो ह्यूमन एरर कर बैठता है। फॉर एग्जांपल सैंपल कभी क्यूसी में भेजना भूल जाता है, मशीन सेटिंग प्रॉपर नहीं करता है, तो ये सब ह्यूमन एरर की वजह से हमारा अल्टीमेटली जो डेविएशंस है वो बढ़ते हैं और हमारा आरएफटी उसके जरिए लो होता जा रहा है। हाँ आप सही बोल रहे हो। वैसे भी अपना गुजराती में एक कहावत है ना कि मानस मात्र भूलने पात्र। हाँ। सही है, आदमी गलती कर सकता है। यस। और ट्रेनिंग के लिए भी कुछ बोल रहे हैं? निकल भाई, अगर पर्सन या सुपरवाइजर को प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं मिला वीएमआर का, प्रोसेस का, एसओपी का, तो वो अपने हिसाब से कुछ भी कर लेगा, तो उसमें अल्टीमेटली अपना बेस आरएफटी में अपना जा सकता है, तो एक वो भी रीजन हो सकता है। और एसेप्टिक प्रैक्टिस की वजह से भी होता है क्या? अरे अंकल भाई, अगर एसेप्टिक प्रैक्टिस फॉलो नहीं किया तो वो एनवीबीसी का हमारा काउंट बढ़ सकता है, हमारा वाइबल का काउंट बढ़ सकता है, जिसकी डायरेक्ट इंपैक्ट हमारे प्रोडक्ट पे जाती है और हमारी आरएफटी है वो लो हो जाती है। अरे हाँ भाइयों, हमने ये सब कोर्स तो आइडेंटिफाई कर ली है, लेकिन हमें उसका सॉल्यूशन भी ढूंढना पड़ेगा। स्टेप नंबर 7. डेटा एनालिसिस, स्टेटस Completed. टूल यूज। पाई चार्ट। On pages of 179 of deviation, we have categorized into that deviation in different category like facility related, NVPC related, document related, equipment related, environmental monitor related, and from that we have mainly basically three types of deviation targeted is equipment, NVPC, and process related. That becomes for that our batch is going to be delay for the release in market. So we have mainly focused in three types of deviation and get solution for that. स्टेप नंबर 8. डेवलपिंग सॉल्यूशन, स्टेटस Completed. टूल यूज। ब्रेनस्टॉर्मिंग। हाँ अरे जिग्नेश भाई, जैसे हमारा पहला कारण था कि प्रोसेस रिलेटेड डेविएशन जो ह्यूमन एरर और प्रोसीजर नॉट फॉलो की वजह से होते थे, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? रिंकल भाई, इसके लिए हमने पहले देखा तो हमको पता चला लोगों को आरएफटी का मीनिंग ही नहीं पता है, इसलिए हमने पहले लोगों को आरएफटी बेस्ड ट्रेनिंग दिया और जो ह्यूमन एरर करते थे उसके लिए भी हमने लोगों को सिचुएशन बेस्ड ट्रेनिंग दिया। सिचुएशन बेस्ड ट्रेनिंग, हाँ, वो क्या होता है? रिंकल पे सिचुएशन बेस्ड ट्रेनिंग, उसमें हम ऐसा होता है कि लोगों को एक्चुअल सिचुएशन क्रिएट करते हैं और उनको दिखाते हैं कि आप ऐसे मिस्टेक करते हो, तो हमने उसके बेस पे उनको वहाँ पे ही ट्रेनिंग किया कि आपको ऐसा मिस्टेक दोबारा करना नहीं है। और जहाँ जहाँ पे भी जो भी डॉक्यूमेंट था अपना वीएमआर और एसओपी जहाँ पे प्रॉपर क्लैरिटी नहीं थी, हम कुछ एडेड इंस्ट्रक्शन डाल सकते थे जिसके लिए क्लैरिटी के लिए वो हमने ऐड किया है और जैसे उसको इम्प्लीमेंट किया है। तो जैसे कि अगर कोई सैंपल अगर भूल जाता है तो उसके लिए हमने सैंपल को कौन से बोतल में लेना है, कैसे भेजना है, वो सब पूरा डाला। और जहाँ पे भी अपना प्रोसेस में जो इंस्ट्रक्शन चाहिए इन प्रोसेस भी इनिशियल मिडल एंड के स्टेज पे करना है और 45 मिनट्स के हिसाब से भी करना है, तो वो हमने प्रॉपर क्लैरिटी भी डाली। ओके, हाँ ये ऑनलाइन वेरिफिकेशन के लिए भी हम कुछ कर सकते हैं। रिंकल पे वो भी हमने इनिशिएट किया, हमने एक ओवरसाइट का ऑनलाइन वेरिफिकेशन का प्रोटोकॉल भी इनिशिएट किया है, जिसके थ्रू हम ऑनलाइन पूरी प्रोसेस मॉनिटरिंग करेंगे और बाद में जो भी हमको आइडेंटिफाई होगा उसके लिए भी हम सॉल्यूशन लाएंगे फ्यूचर। और
मशीन रिलेटेड ब्रेकडाउन कम करने के लिए हम क्या करेंगे? हाँ रिंकल भाई, मशीन रिलेटेड प्रॉब्लम के लिए हमने लोगों को जो भी मशीन सेटिंग करते हैं वो ऑपरेटरों को इंजीनियरिंग और सिलेंडर के थ्रू हमने मशीन को प्रॉपर कैसे सेट करते हैं वो ट्रेनिंग दिया है। और इसके साथ स्कैपिंग मशीन में हमने एडिशनल वायल के लिए भी हमने बीएमआर में प्रोविजन डाला है कि आपको एडिशनल वायल से भी सेटिंग कर सकते हो। इसके साथ साथ जो एनपीपीसी का अपना एनपीपीसी नहीं, इसके साथ साथ जो हमारा एसआईपी में प्रॉब्लम था, जो अपना बार बार उसमें दिक्कत होती थी, तो उसके लिए हमने वो देखा तो मैनुअल प्रोसेस बहुत इंटरवेंशन था, तो इसके लिए हमने पूरा एक चेकलिस्ट बनाया और हमने पूरा एसओपी में चेकलिस्ट डाला ताकि वो रिपीट ना हो। और नाइट्रोजन फ्लो के लिए भी ऐसा था कि एक ही कनेक्शन था, तो पर्सन बार बार क्या उधर कनेक्शन करता था तो अपना उसको दिक्कत होती थी, तो हमने उसके लिए टी कनेक्टर लगा के दूसरा कनेक्शन दिया ताकि वो वहाँ पे भी दोबारा मिस्टेक ना हो। और एनपीसी रिलेटेड डेविएशन कम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? अरे रिंकल भाई, हमने एमबीपीसी रिलेटेड डेविएशन जो आ रहे थे इसके लिए हमने वेरीफाई किया कि जहाँ पे एमबीपीसी का प्रोब लगाया था वो वाइब्रेशन हो रहा था फिलिंग मशीन के एक्टिविटी के दौरान, तो हमने क्या किया, हमने एक वाइब्रेशन पेड लगा दिया जिसकी वजह से वाइब्रेशन कम होगा और हमारा जो बैच मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी होता है वो फाउंड सेटिस्फैक्टरी मिला। और ये जो डेटा है हमने 2 महीने तक रिव्यू किया और वो फाउंड सेटिस्फैक्टरी मिला। और एडिशनली हमने हार्ड पार्टीशन भी डाला जिसकी वजह से हमारा बैच मैन्युफैक्चरिंग में कोई प्रॉब्लम ना आए। और रिसेंटली हमारा 2 डेविएशन और भी हुआ है एमबीपीसी रिलेटेड जिसका हमने प्रॉब्लम हमारे अंडर डेवलपिंग में है। और ड्यूरिंग एक्टिविटी डू एंड डोंट्स का हमने अवेयरनेस ट्रेनिंग भी दिया है। जो भी बंदे एसएफटी एरिया में काम करते थे, प्रोडक्शन और सुपरवाइजर को सबको हमने ट्रेनिंग दिया है। स्टेप नंबर 9, फोर्सिंग प्रोबेबल रेजिस्टेंस स्टेटस कंप्लीटेड। टूल यूज ब्रेनस्टॉर्मिंग। अरे दिक्तेश, अपना ये जो सॉल्यूशन था उसको रूटीन में इंप्लीमेंट करने के लिए अपने को सीएफटी की ओर से कोई रेजिस्टेंस नहीं आया क्या? अरे रिंकल भाई, रेजिस्टेंस तो हर जगह पर आते हैं। हमको ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए रेजिस्टेंस भी आया, जैसे कि इक्विपमेंट नॉट अवेलेबल फॉर मॉडिफिकेशन, तो हम क्या कर सकते हैं, हमारे प्रोजेक्ट पे तो ताला लग गया, लेकिन उसका चाबी हमारे पास ढूंढ निकाला हमने प्रोडक्शन और इंजीनियरिंग टीम के साथ बैठ के पूरा प्रपोज प्लान रिव्यू किया और हमको जब इक्विपमेंट हमको फ्री मिला है तब उनको मॉडिफिकेशन के लिए डाला। और हमारा जो प्रोजेक्ट था उसका जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम को हमने रूल आउट करने के लिए कोशिश किया है। ओके, लेकिन ये सॉल्यूशन आपको इंप्लीमेंट करने के लिए एरिया रिलीज के लिए भी प्रॉब्लम नहीं हुआ? प्रॉब्लम तो हर जगह पर है। दूसरा भी प्रॉब्लम हमको आइडेंटिफाई हुआ है कि एरिया रिलीज क्राइटेरिया हमारे पास डिफाइंड ही नहीं था, तो उसके लिए भी हमारे प्रोजेक्ट पे ताला लग गया। ताले के लिए चाबी रहती ही है, तो हमारे पास दूसरा भी चाबी था। प्रोटोकॉल बेस्ड स्टडी किया और प्रोटोकॉल बेस्ड स्टडी के जरिए हमने अप्रूवल लगाया और उसमें हमने जो एरिया रिलीज क्राइटेरिया था वो डिफाइन किया और उसके बेस पे हमने एरिया को प्रोडक्ट्स के लिए यूज किया और हम प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के जरिए आगे बढ़े। स्टेप नंबर 10, ट्रायल इम्प्लीमेंटेशन स्टेटस Completed. टूल यूज पीडीसीए। हमने जो हमारा जो सॉल्यूशन था उसके लिए हमने ट्रायल इम्प्लीमेंटेशन किया। जो पहला प्रॉब्लम था हमारा एमबीपीसी का, तो एमबीपीसी के लिए हमने क्या किया कि हमने वाटर ट्रायल लिया और वाटर ट्रायल के दौरान हमको हमारा जो प्रॉब्लम था वो सॉर्ट आउट हुआ, हमारा वाइब्रेशन नहीं हुआ प्रोब में और हमारा जो भी रिजल्ट था वो फाउंड सेटिस्फैक्टरी मिला। दूसरा, हमारा कैपिंग में जो प्रॉब्लम आ रहा था सील का, तो हमने क्या किया, सील के लिए एक स्टडी प्रोटोकॉल बनाया। बिफोर यूज ऑफ सील हमने वो सब सारे सील हमको वेरीफाई करना है और हमने ये स्टडी 3 बैच में करके देखा है, वो फाउंड सेटिस्फैक्टरी मिला है और फाउंड सेटिस्फैक्टरी मिला है और हमारा अभी ऑनगोइंग में है। स्टेप नंबर 11, रेगुलर इम्प्लीमेंटेशन स्टेटस कंप्लीटेड। टूल यूज पीडीसी है, ये जो भी हमने चेंजेस किए उसके लिए हमने जहाँ पे हमारी जरूरत थी बैच मैन्युफैक्चरिंग रिकॉर्ड को रिवाइज करने की, वहाँ पे बैच मैन्युफैक्चरिंग रिकॉर्ड रिवाइज किया। जहाँ पे प्रोसेस रिवाइज करने की जरूरत थी वहाँ पे हमने प्रोसेस रिवाइज किया और ये जो भी चेंजेस हमने किए उसके लिए हमने अवेयरनेस ट्रेनिंग को दिया और कहाँ से कैसे हमारे प्रोसेस फॉलो करना है, कैसे एक्टिविटी फॉलो करना है, वो सब एक्टिविटी हमने कंप्लीट किया। स्टेप नंबर 12, Follow up and review, स्टेटस ongoing, टूल यूज data collection and graph. So based on our developing solution, we have evaluated our last 3-month data and that is that as per 64% in March, 73% in April. 79% in May. 81% in June. Hence target achieved. So ये क्वालिटी सर्कल का जो प्रोजेक्ट किया हमको उसके 2 टाइप के बेनिफिट्स मिले। उसमें टेंजिबल बेनिफिट्स भी है और इनटेंजिबल बेनिफिट्स भी है। टेंजिबल बेनिफिट्स जैसे कि नंबर ऑफ डिविजन Reduce. बैच रिलीज पीरियड Reduce. एंड अपना क्वालिटी इंडेक्स Improved. इसमें हमको इंटेंजिबल बेनिफिट्स भी मिले हैं, जैसे कि टीम कॉन्फिडेंस Improved. टीम बिल्डिंग Improved. नॉलेज एनहांसमेंट Improved. सेल्फ कॉन्फिडेंस Improved. एंड स्टेज फियर Reduced.